Hello kids, welcome back. Welcome back to our new video. In this chapter, we will learn how we can personalize our Windows 7. In this chapter, we are going to read that how we can personalize Windows 7. So earlier in this chapter, earlier in this series, we have learned about Windows 7 and different thing that we can do, different tools of Windows 7. Now this time we are going to read about this time we are going to read about personalizing Windows 7. So personalizing Windows 7 means how you can change the appearance and or background of your Windows 7. So now what are the different topic that we guys are going to cover in this chapter? Opening personalization window, changing desktop background, setting the screensaver, changing the color scheme, applying theme, adding and removing a gadget on the desktop. These are the different parts of this chapter that we are going to finish. Okay, now, hi kids. Do you know that the desktop that appear on the computer screen has some background and themes? Okay class, now as you know that we can change the background and themes of our smartphone. We can change the background and schemes of our smartphone. Now similarly, we can change the background and themes of our desktop also. We can change the background and scheme of our computer desktop also. You can change these background according to your choice. We can change these background according to our choice. Now do you want to know how? Let us decorate your desktop. Let us what we are going to do? We are going to decorate our desktop. Okay, let us do. Now opening personalization window. Opening personalization window. You can open the personalization window to decorate the desktop of Windows 7. Windows 7 के desktop पे आप personalization window open करके उसको decorate कर सकते हो. Now how we are going to do this? Go on the start button and from there click on the control panel. The control panel window will appear. What next? What after control panel? Now let us update our knowledge. Control panel is a program which is used to change some setting in the operating system or computer. Control panel is a program which is used to change some setting in the operating system. Okay, now kids, so how we are going to open the control panel? First go on start, then go on control panel. Okay, just click on start and go on control panel. So let us see. Okay, so here I have clicked on. See, here I have clicked on start button. Okay, and now
what I'll do, I have to open control panel. I have to open control panel. So I'll search it, control पैनल. देखो कंट्रोल पैनल हमारे स्क्रीन पे आ गया ना. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टैप इट. अब ये ओपन हो गया. ठीक है, अब ये कंट्रोल पैनल क्या हो गया भाई, हमारा हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया. Now let us move ahead and then we will work with control panel. Now click on appearance and personalization. After opening the control panel, we have to click on appearance and personalization. The appearance and personalization windows appear. देखो ऐसा control panel open हो गया. देखो हमारा भी ऐसा control panel open हो गया. See, ये बिल्कुल सेम है ना जैसा यहाँ पे हमने देखा. Wait a minute, let me resize it and then I will show you. देखो ये बिल्कुल सेम है ना. सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, है ना, बिल्कुल पूरी तरह से सेम. Now here we are having appearance and personalization, and in this tab we are having appearance and personalization here. Okay, now let's see what again we have to do. After clicking on appearance and personalization, क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन टैब. भाई क्या करना है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करके वी हैव टू क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन टैब. द पर्सनलाइजेशन विंडोज अपीयर. क्लिक ऑन द क्लोज बटन व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग. आप क्लोज कर दीजिए जब आप वर्किंग अपना काम आप क्या करें, खत्म कर ले. क्लोज बटन से हम क्या करते हैं, अपने काम को ओवर करते हैं. नाउ गेट वन थिंग. सी, कंट्रोल पैनल तक सही था, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन तक सही था. नाउ व्हेन यू विल क्लिक, नाउ व्हेन यू विल क्लिक अपीयरेंस बटन इन विंडोज 10, वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. अब आगे की स्क्रीन आपको इस तरह की नहीं दिखेगी, वो थोड़ी सी अलग दिखेगी आपको. ओके, सो लेट अस सी. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू ओपन दिस टैब कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल को मैंने ओपन किया. अब यहाँ पे मुझे किस पे जाना है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन. सो आई विल डबल क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन. सी, मैम ने बोला था ना कि अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने पे थोड़ी सी चीजें क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी. ओके, नाउ इधर हमें देखो किस पे जाना होगा, नेविगेशन प्रॉपर्टी. वी विल गो ऑन. देखो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन एक अलग विंडोज थी, यहाँ पे एक अलग बटन नहीं है पर्सनलाइजेशन की. सो वी विल क्लिक ऑन टास्क बार एंड नेविगेशन. अब जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो देखो इधर साइड में हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, है ना. यहाँ पे हमें साइड में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं. तो ये क्या है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है. ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है विंडोज 10 और विंडोज 7 में. विंडोज 10 में क्या था, अपीयरेंस का अलग बटन था. अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें टास्क बार के नाम से जब हम ओपन कर रहे हैं तो पर्सनलाइजेशन में वी आर हैविंग बैकग्राउंड कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फोन, अलग अलग चीजें वी आर गेटिंग हियर. Okay, now let us move toward our chapter. Okay, so here in this our chapter, what is written, we have to close once we will finish our work, we have to close the window. Okay, now let us update our knowledge.
Okay, so now we have to update our knowledge. So let us update our knowledge. You can also open the personalization windows by right clicking on an empty place of the desktop and then click on the personalize from the menu that appears. Let us try this कि ऐसा होता है कि नहीं. अगर हम चलो यहाँ पे हम ट्राई करें. So it is written there कि if I click anywhere on the empty side, हाँ देखो यहाँ पे personalize का ऑप्शन आ रहा है ना बेटा. यहाँ पे देखो पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है. हमने कैसे किया? अपडेट योर नॉलेज से हमने क्या सीखा कि अपने स्क्रीन के ब्लैंक साइड पे कहीं भी अगर मैं अपनी स्क्रीन के ब्लैंक साइड पे अगर कहीं भी मैं ये क्लिक करूं. चलो लेट अस मेक अ ब्लैंक साइड फर्स्ट. चलो इतना साइड ब्लैंक और यहाँ पे मैंने अगर राइट क्लिक किया तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ रहे हैं ना. व्यू, सॉर्ट, रिफ्रेश एंड अनडू, रीनेम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, न्यू. यहाँ पे जाके हम फाइल या फोल्डर बना सकते हैं. डिस्प्ले सेटिंग एंड देन पर्सनलाइज. तो जब हम पर्सनलाइज पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे लिए ये चीज ओपन हो जा रही है ना. चलो अब वापस अपने बुक की तरफ चलते हैं. So moving ahead, changing desktop background. Like you change your phone background, जैसा कि आप अपने फोन की बैकग्राउंड चेंज करते हो. जैसा कि एग्जाम के टाइम आप अपनी सॉरी जैसा कि आप अपने मोबाइल में आप क्या करते हो? डेस्कटॉप चेंज करते हो ना. अपने मोबाइल में आप अपने डेस्कटॉप व्यू या थीम या उसका बैकग्राउंड चेंज करते हो ना. कभी कभी कुछ लोग अपनी फोटोज लगा देते हैं, कभी कभी कुछ लोग कोई कोटेशन की फोटो लगा देते हैं. तो लाइकवाइज वी कैन चेंज द इमेज ऑफ आवर डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑल्सो. लाइकवाइज वी कैन चेंज आवर desktop background also. Now you can also make your background more attractive and colorful. You can make your background more attractive and color. हम उसको कलरफुल कर सकते हैं. ठीक है. So you can make your desktop background more beautiful by changing its wallpaper according to your choice. The background image that appear on your desktop, the background image that appears on your desktop is called wallpaper. That image is called wallpaper. You can even put your own picture or other picture provided by Windows in your computer. देखो होता क्या, या तो हम अपनी खुद की पिक्चर अपलोड कर दें उस पे, या वन थिंग मोर आई कैन डू व्हाट दैट इज व्हाट दैट हम क्या कर सकते हैं वन थिंग मोर में कि हम विंडोज ने खुद के कई सारे इमेजेस दिए हुए हैं. विंडोज ने क्या किया है, खुद के कई सारे इमेजेस दिए हुए हैं. हम उसको भी अपलोड कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड इमेज. हम उनको भी अपलोड कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज open the personalization windows. Open the personalization windows. Note: to open personalization windows, use the step 1 to 4 from previous section. ठीक है. पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन करना कैसे था वो तो हमें पहले पता था. तो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन हियर that we have to do from प्रीवियस सेक्शन. जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि किस तरह से हमें पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन करना है. तो लाइक दैट वी हैव टू ओपन पर्सनलाइजेशन विंडो. ओके. नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड. कहाँ चेक करना क्लिक करना है? क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड. So now in Windows 10 desktop background option is not given, only background option is given. Desktop background option is not given, only background option is given. Okay. Okay. Now
Click on the down arrow of picture location. A drop down menu will appear. Click on the background gallery you want to use. ठीक है, चलो ये सारी चीजें भी हम करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो ऑन कंट्रोल पैनल. सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल पे गई. वहां पे मैंने पर्सनलाइजेशन खोल लिया. नाउ इन पर्सनलाइजेशन सी आई विल क्लिक ऑन बैकग्राउंड. अब देखो बैकग्राउंड में व्हाट आई कैन चेंज. सपोज आई विल क्लिक दिस एज बैकग्राउंड. या तो ये विंडोज का अपना है, विंडोज के ये खुद के कुछ पिक्चर प्रोवाइड किए गए हैं. तो हमने क्या किया, ये विंडोज के खुद के कुछ पिक्चर प्रोवाइड किए गए हैं तो हमने चूज कर लिया. और वी कैन ब्राउज. जब हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो दे विल ओपन कि भाई आप कहाँ से कोई पिक्चर ओपन करना चाह रही हो. इफ आई गो ऑन सेव पिक्चर, okay, so there is no picture in my desktop, so I will go with windows picture. So I will click on this picture. ठीक है, मैंने ये पिक्चर क्लिक की. अब आप देखो मेरा बैकग्राउंड किस तरह का दिख रहा है. सारे बच्चे देखो, देखा मैम का बैकग्राउंड चेंज हो गया ना. देखो सारे बच्चे, है ना. देखो ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना हमें. यहाँ पे क्या हुआ है, बैकग्राउंड चेंज हो गया. मैम ने क्या किया है, बैकग्राउंड अपनी क्या कर दी है, चेंज कर दी है ना. चलो अब हम दोबारा चलते हैं. अच्छा, इस बार हम कोई पिक्चर ऐसी लेते हैं जो कि हमारे लैपटॉप में हो. तो देखते हैं कोई भी पिक्चर अगर हमारे लैपटॉप में. चलो ताजमहल की एक पिक्चर मुझे दिख रही है, या ओके आई विल क्लिक ऑन दिस पिक्चर. चलो नाउ लेट अस सी. अब ये पिक्चर जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रीव्यू में जैसा दिख रहा है वैसा ही हमारा डेस्कटॉप दिख रहा होगा. चलो लेट अस सी. सी अब हमारा यहाँ पे हम इनकी जगह हो सकता है तो हम अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, है ना. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन चेंज द desktop image. This is the way how you can change the desktop image of your Windows 7 desktop. Okay, now moving toward, again no I don't like this picture, so now I will click on this umbrella or I will click on this picture. Fine. तो अब मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन कैसी दिख रही है, अब मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ इस तरह की दिख रही है. अब बीच साइड, है ना. नाउ अब मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन कैसी दिख रही है, बीच साइड दिख रही है ना बेटे. ग्रेट. नाउ मूविंग अहेड, I'll go with, let us see what are the next thing that we can do here. तो हमने ये देखा कि हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड इमेज. हाउ कैन वी कैन चेंज द बैकग्राउंड इमेज. इफ यू वांट टू ऐड योर ओन इमेज, चलो ये सब तो वी ऑल दिस थिंग्स वी ऑल हैव डन. नाउ Windows 7 display the background in the selected gallery. Click on clear all. Click on the image. जैसा अभी हमने किया, click on the image or the color you want to use. Click on the down arrow of the picture position. Click on the save and then close button. अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको close नहीं किया तो अब ना मैं अब क्या करूँगी, इसको close कर दूंगी. ठीक है, तो last step is to close the window. जो भी window खुली है उसको close कर देना. ओके तो यहाँ पे हमने देखा हाउ वी कैन चेंज द कलर. द पिक्चर और कलर यू हैव सेलेक्टेड अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप. नाउ अभी मैम ने आपको सिखाया हाउ यू कैन चेंज द, अभी मैम ने आपको सिखाया हाउ, मैम ने आपको सिखाया हाउ यू कैन चेंज द इमेज. पता है क्या, वी कैन चेंज द color also, we can change the color also. So next we are going to do, we are going to change the color of the desktop. Okay, now before that let us read update your knowledge. Update your knowledge. Picture position. Okay, fill.
अच्छा देखो, जब मैं पिक्चर पोजीशन करती हूँ ना, जब मैं कोई पिक्चर अपलोड करती हूँ तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन। यस, तो वी वर रीडिंग पिक्चर पोजीशन। तो जब हम कोई पिक्चर बैकग्राउंड इमेज की तरह अपलोड करते हैं, so what happen, so there appears a option of picture position. So there are different options like fill, fit, stretch, title and center fill. Now this option displays a single copy of the image extended on all the side and keep the ratio of width to hide the same. So it means that some part of the image will cut off. Fill अगर हम करेंगे तो image की कुछ part क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी. Fit, what will happen in fit? This option displays a single copy of the image extended until either the width of the picture fits the width of the screen. मतलब अब जैसे मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी सी हमें दिख रही है, तो वो पिक्चर भी अपने आप को इतने बड़े में क्या हो जानी है, वो सेट हो जाएगी. Okay, now next is, now next option is fit. दिस ऑप्शन डिस्प्ले अ सिंगल कॉपी ऑफ द इमेज. तो ये मैंने आपको बताया कि जितनी बड़ी मेरी स्क्रीन होगी उतने बड़े स्क्रीन पे ये किसी तरह से अपने आप को व्हाट इट विल डू, इट विल एडजस्ट इट. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेच. दिस ऑप्शन डिस्प्लेज अ सिंगल कॉपी ऑफ द इमेज एक्सटेंडेड ऑन ऑल द साइड सो इट फिट द एंटायर डेस्कटॉप. अभी हम ये सारा करके देखेंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्टाइल. दिस ऑप्शन डिस्प्ले मल्टीपल कॉपी ऑफ द इमेज. अब एक ही इमेज की इट विल डिस्प्ले मल्टीपल कॉपी, कई सारी कॉपी इट विल डिस्प्ले, ऐसे ऐसे करके कई सारी कॉपीज ये डिस्प्ले करेगी so that they can fill the entire desktop. Now center, this option display a single copy of the image. ये कहाँ पे, सेंटर ऑफ द डेस्कटॉप पे ये सिंगल कॉपी हमें दिखेगी. नाउ लेट अस ट्राई. Okay, so we will go on control panel and there we will go on, या बैकग्राउंड पे हम जाएंगे. अच्छा देखो, यहाँ पे देखो चूज अ फिट का ऑप्शन आ रहा है ना, एंड सी ऑल द ऑप्शंस आर सेम ना, जैसा कि हमने पढ़ा. चलो देखते हैं. सपोज मैंने ये पिक्चर चूज की, ठीक है. अब मैंने चूज अ फिट पे क्लिक किया. अब यहाँ पे मैंने जब फिल किया तो सी व्हाट हैपन. चलो देखते हैं क्या हुआ फिल करने पे. ओके, फिल करने पे ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही है हमें. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. फिल के बाद वी विल क्लिक ऑन फिट. नाउ सी फिट पे क्या हुआ, ये इमेज क्या हुई, साइड से इसकी विड्थ हट गई और ये बस यहाँ पे यहाँ बीच में आ सी गई है. Now next is after fill and fit, I'll click on stretch. Let us see what will happen if I'll stretch the image. अब again ये image मेरे पूरे डेस्कटॉप पे आ गई है ना, पूरे डेस्कटॉप पे ये image क्या हो गई है, भर गई है. Next after stretch tile. चलो टाइल पे देखते हैं क्या होता है. ओके देखो टाइल्स की तरह हुआ ना, एक ही इमेज. देखो ये कैसा अजीब सा दिख रहा है. एक ही इमेज छोटे छोटे पूरे स्क्रीन को भरने के लिए छोटी छोटी साइज में पूरी स्क्रीन पे आ चुकी है ना. नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर टाइल द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेंटर. लेट अस सी सेंटर पे करने पे क्या होता है. अब ये इमेज आपको दिख रही है मैम के स्क्रीन पे, छोटी सी सेंटर पे ये इमेज आ गई है, बाकी हर जगह कलर रेड हो गया है. छोटी सी ये इमेज कहाँ आ गई है, खाली सेंटर ऑफ द डेस्कटॉप पे छोटी सी इमेज आ गई है. रेस्ट सारी जगह क्या है, फ्री है, खाली है. देन आफ्टर सेंटर स्पैन. अब स्पैन करके देखते हैं व्हाट हैपन. वापस से इमेज क्या हुई, पूरी फुल साइज पे आ चुकी है. तो हम क्या रखेंगे इसको, हम इसको
फिल रखेंगे और हम इमेज ये वाली रखेंगे। ओके, okay, so this is our image. Now let us move toward our chapter. तो ये हमने पढ़ा how to position a picture. ये हमने पढ़ा picture a how we can position a picture. Okay, now let us see what is the next topic that we have to study. So the next topic that we have to study is setting the screen saver. Setting the screen saver. Okay, let us see, do we have that option here in Windows 10 or not. So we will search it. Screen saver. I don't think कि screen saver, okay, है, option is there, change screen saver, so we will click on that. Now the screen saver is the moving picture that appears automatically on your computer if you do not use your computer for a period of time. So if you do not use your computer for a period of time, what happens? The screensaver pictures automatically appear on your computer. ठीक है, टू ब्रिंग बैक योर डेस्कटॉप अगेन जस्ट मूव योर कर्सर. तो अगर स्क्रीन सेवर आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपको वापस से अपना डेस्कटॉप चाहिए, तो आप क्या करोगे, बस अपने माउस पॉइंटर को आपने मूव करना है दोबारा से. आपका डेस्कटॉप आ जाएगा ना. हाउ वी कैन चेंज द स्क्रीन सेवर? ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो. देखो क्या करना है, हमें अपना पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन करना है. क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर. आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर. ठीक है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द पर्सनलाइजेशन विंडो, क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर. The screensaver setting dialog box appear. The screensaver setting dialog box will appear. Click on the down arrow of screensaver. क्या करना है आपने, डाउन एरो स्क्रीनसेवर का क्लिक करना है. नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीनसेवर यू वांट. नेक्स्ट इज यू हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रीनसेवर दैट यू वांट टू यूज. अब प्रीव्यू मतलब वो हमारी स्क्रीन कैसी दिखेगी. अब प्रीव्यू of the screensaver appears. Note, all the screensaver cannot display the small preview. All the screensaver display the small preview. To see an actual preview, click on the preview. After this, move the mouse pointer or press a key to. कहीं भी माउस पॉइंटर मूव करेंगे तो व्हाट विल हैपन, अब प्रीव्यू विल स्टॉप. तो देखो ये सारा रीड करने से हमें नहीं समझ में आएगा जब तक हम करेंगे नहीं. रीड करने से वी वोंट गेट इट. हाउ टू डू इट, वी वोंट गेट इट. वी हैव टू डू द प्रैक्टिकल. नाउ क्लिक ऑन द वेट अप एंड click on the weight up and weight down. Click on button to specify the number of minute of computer. Okay, and then click OK. So these are the steps to change the screensaver. ठीक है, the screensaver appear after your computer is idle for the number of minute you specified in step 5. अच्छा, now so these all things we will do. स्क्रीन सेवर से क्या होता है, स्क्रीन सेवर जब हमारी स्क्रीन, मान लो मैं अभी अपने स्क्रीन पे कोई काम नहीं कर रही, देन व्हाट विल हैपन, हमारे स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, उसी को हम स्क्रीन सेवर कहते हैं ना. हाउ टू चेंज अ स्क्रीन सेवर, वी हैव read the step and now we will do it in our next class. How to change a screen saver, we will do this in our next class. There are certain steps to do a screen saver and that we will do in our next class. Okay, after that we will change the color scheme, है ना. I was telling you ना about color scheme, so we will change the color scheme also. Okay.